At one point it was looking South Africa's way, but I thought, overall as a team, as a group on the field, we wanted this really bad. We wanted to win this, but I know to win a tournament like this, a lot goes behind the scenes, a lot of efforts, a lot of mind needs to come together, and I'm very, very proud of the bunch of boys that I have and the management as well, for giving us that liberty to go and play and execute, and having that trust in each one of us, and that has to start from the management, coach, captain, and then the players go out there and do it. Throughout the tournament, I think we were fantastic. Let's talk about a few individual players and not isolating anyone else, but Virat's form wasn't the greatest coming into this final. What's your appreciation of what he did today with the bat? Look, I was, not me, but nobody was in doubt about that form of Virat's. We know the quality that he has. He's been on top of his game for last 15 years. Come the occasion, we know big players will stand up. Virat was obviously holding that one end, which was very, very crucial for us. And the others played around him. And for us to get to that total was a team effort as well. We wanted somebody to bat as long as possible. These are not the wicket where you can just come and bat freely and keep the scoreboard ticking straight away. So we do understand that, and we wanted somebody to bat as long as possible. Virat did that perfectly. That is where experience, all the years that he has played, comes into the picture, and the other guys around played really well. Aksar's knock of 47 was, I think, very, very crucial as well. Let's jump on to the bowling now, and you've got many, many heroes across the tournament. Aksar himself with the ball, Kuldeep, Ashdeep, but this guy Jasprit Bumrah, how do we put into words what he keeps doing? I can understand you guys trying to put it out in the words, but I've been someone who's seen him for so many years playing alongside me. Even I don't know what exactly is with him, and what I know exactly what he brings to the table, but how he does that, it is just masterclass, to be honest. And he backs his skills, which is more than enough. And he's a very confident lad. Whatever he wants to do, he executes that to perfection, which is a very rare sight. I know. Hardik is telling you that he wants to celebrate here now. Yeah, no, Jasprit Bumrah, to put it in one word, is a class act. And Hardik bowling that. Hardik was brilliant as well. Bowling that over, no matter how many runs is required to bowl that last over, nerves and all of that, I'm very, very, very proud of the boys. A word to the fans who've turned up here finally, who've supported you at home and abroad. Yeah, no, absolutely fantastic. All the way through New York to Barbados, I just want to salute them, to come and support us the way they have. And also back home, millions of people are sitting there watching it. It's a late night in India. I'm pretty sure they will be up tonight to watch this. It is for them. They've been waiting for a long time, like we have. So yeah, very, very proud of what we've achieved today. Rohit, congratulations. Thank you very much for all the entertainment you've provided. What we've achieved today. Rohit, congratulations. Thank you very much for all the entertainment you've provided around this tournament. Once again, I'll allow you to go and to join your teammates to receive the trophy from Mr. Greg Barclay, the ICC chair, and Mr. Jay Shah, ICC director. Congratulations to India, led by Rohit Sharma, ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2024. विजेता वही जो हार न माने, विश्व विजेता वो जो दुनिया के सामने अड़ जाए। ये टीम इंडिया अड़ी है, ये टीम इंडिया लड़ी है। ये खिताब सबसे बड़ा है, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में नया कोहिनूर चढ़ा है। ये जश्न की रात है, ये सेलिब्रेशन का वक्त है। 13 साल का वो लंबा इंतजार बिल्कुल वनवास की तरफ। पिछले 12 महीनों में तीसरा आईसीसी फाइनल था टीम इंडिया का। आखिरकार बोरिवली के उस लड़के ने आज बारबेडोस में भारत का तिरंगा लहराया।
ये तोहफा है दुनिया भर से टीम इंडिया के दीवाने फैंस के लिए। ये गिफ्ट है कोच राहुल द्रविड़ के लिए। ये इंस्पिरेशन है उन युवाओं और बच्चों के लिए जो इस खेल को अब विराट जा रहे हैं एक पूरी जनरेशन को क्रिकेट का ये नायाब खेल सौंपकर। और वो सारी भावनाएं जो हम अपने दिल में महसूस कर रहे हैं वो आज आप टीम इंडिया के इन चेहरों पे देखेंगे। कोच राहुल द्रविड़ के चेहरों पे देखेंगे, हार्दिक पांड्या के चेहरे पे देखेंगे। क्या भाई 5 साल हमने देखे हैं यहाँ पे एक साथ एक के बाद एक फाइनल। आप बताइए दिल में क्या फीलिंग है? 2007 में राहुल द्रविड़ कैप्टन थे और वहाँ हम क्वालिफाई नहीं किए थे सुपर 8 के लिए, को बाहर हो गए थे लीग स्टेज पे। और उनके उसके बाद ना उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया था। इंडिया आए, कप्तानी त्यागी, मोबाइल बंद। लोग पूछ रहे भाई कि क्यों छोड़ रहे कप्तानी, हार गए पर कप्तानी क्यों छोड़ो? वो मीडिया से बात नहीं करे, फोन बंद था। वो दिन था 2007 की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ धोनी का तो वर्ल्ड कप जीता, पर उससे पहले ये भी हुआ था जहाँ राहुल द्रविड़ कैप्टन थे, हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं किए थे। उसके बाद ये पल जहाँ वेस्ट इंडीज में दोबारा से पहुंचे राहुल द्रविड़ एज अ कोच 2009 नहीं किए थे। उसके बाद ये पल जहाँ वेस्ट इंडीज में दोबारा से पहुंचे राहुल द्रविड़ एज अ कोच 9 महीने पहले अहमदाबाद में हारे। वो भी अच्छा खेले, 10 मैच लगातार जीतने के बाद एक मैच हार गए और लोगों ने बोला यार जो जीतता हुआ सिकंदर में समझ सकता हूँ, पर वहाँ भी इंडियन टीम मजबूत टीम थी। वहाँ रोहित शर्मा रो के बाहर गए थे, आंसू बह रहा था जब वो ग्राउंड से वॉक करके बाहर गए थे। हम लोग ग्राउंड में मौजूद थे और हमें शक्ल मुझे याद रोहित शर्मा की भाई, और वो पल था। और आज यहाँ देखिए रोहित शर्मा दोबारा से, देखिए ऊपर वाले घर में ना देर अंधेर नहीं है बॉस, उसके दरबार में देर अंधेर नहीं है। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन लगे रहे, अपनी टीम को बैक किया, शिवम दुबे को ड्रॉप नहीं किया, खिलाया, नंबर 3 को बंदू खिलाया, विराट कोहली को ओपन कराई, मतलब अपने टीम को बैक करना और सेट द एग्जांपल। बाप ने खुद बल्लेबाजी करी। तो ये जो नजारे हैं ना भाई, वो डिजर्व करता है, क्योंकि वो 2007 से खेल रहा भारतीय टीम में, इतना लंबा सफर तय करने के बाद एज ए कैप्टन 1 साल में 3 बार फाइनल खेला है, WTC फाइनल, ODI फाइनल, और वहां दोनों हार मिली। यहाँ पहुंचे और बहुत क्लोज मैच, जहाँ ऑस्ट्रेलिया को हराया हमने हराया इंग्लैंड को, हमने हराया पाकिस्तान को, हमने हराया 24 बॉल 26 चाहिए था, हारा हुआ मैच था। वहां पे ये हमारे चैंपियन मैच में लड़ाई करी और जीत के आए। दृश्य देख रहे हैं आप, रोहित शर्मा पीछे खड़े हैं, बाकी सारे जो सदस्य हैं उस ट्रॉफी के साथ पोज कर रहे हैं, चैंपियंस हैं। और शायद रोहित की यही वो बात है जहां हम सब ऐसा लगता है कि ये अपना बड़ा भाई है, ये कप्तान तो है दीप, लेकिन ये अपना बड़ा भाई है। ये बड़ा भाई है, ये फादर फिगर, एल्डरली ब्रदर जो फिगर कहते हैं हम, वो है। और 2022 जस्ट थिंक अबाउट इट, 2022 के बाद काफी आलोचना हुई, खेलने का स्टाइल T20 है, बहुत धीमा खेलते हैं, ओल्ड स्कूल। बदला रोहित ने, और सिर्फ अपने आप का गेम नहीं बदला, पूरी टीम का गेम बदला, सोच बदली। फिर दाद देनी पड़ेगी सिलेक्टर्स की भी, दाद देनी पड़ेगी जो जितने वहाँ पे टीम के इर्द गिर्द भी लोग हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में काफी कुछ चीजें बदली हैं, खासकर T20 क्रिकेट में। और कहीं ना कहीं ये राहुल द्रविड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनके लिए थोड़ा सा ज्यादा खास होगा। यूजी चैल जिनके हाथ में इस वक्त है ट्रॉफी, उनके लिए भी खास। पता नहीं इसके बाद कितने और ICC टूर्नामेंट्स खेलने को मिले, लेकिन भैया ये बहुत बड़ा दिन है। और कहीं ना कहीं वो जो एक मंकी ऑन योर बैक रहता है ना, जो लोग बोलते हैं कि भैया ICC ट्रॉफीज इतनी बड़ी टीम है, ये है वो है, सेमीफाइनल पहुंचते हो हार जाते हो, फाइनल में पहुंचते हो हार जाते हो, लेकिन चलो वो जो है आलोचना वो अब बंद हुई, वो अब लोग और नहीं बोल पाएंगे, वो अब बोलने का मौका भी नहीं, और मौका नहीं दिया इस टीम ने। जो सारे फैंस हैं जिन आंसुओं को दबा के रखा है, उन्हें बहने दो, क्योंकि वो खुशी का समंदर बनने वाले हैं।